Uh, in last lecture, we have talked about synchronization of three-phase alternator. Okay, we are studying first 3 units. It covers entire synchronous generator as well as synchronous motor. Right? So it is clear, right? First, it includes construction, working principle, then analysis part, phasor diagram, everything we studied for synchronous generator. Something is left for synchronous generator, but we are studying both synchronous generator and synchronous motor in parallel. Before studying synchronization of three-phase synchronous generator, we have studied the synchronous motor. We have already studied the synchronous motor and working principle of synchronous motor. We have studied how it works, why synchronous motor is not self-starting. This we have studied. What are the types of starting methods, damper winding starter or prime mover starter, that we studied for synchronous motor. And you can study from any book, synchronous motor, or in YouTube, Google. You can, lot of material is available for synchronous motor. One important thing is left, what is how to draw the phasor diagram or how to calculate the back EMF of synchronous motor. We have already studied numericals based on synchronous generator. Synchronous generator phasor diagram we have drawn. We have studied one numerical based on synchronous generator. But we are not studied for synchronous motor. So synchronous motor is equally important. So एक numerical बनता है, उस numerical को try to understand. Equivalent circuit or model of synchronous motor is like this. Okay, we call it as a model. Model means representing a machine in mathematical equation or circuit is called as modeling. Writing equation is called as modeling, or we can write this V is equal to IARA plus J times IAXS plus EB. Okay. This we already studied that there is always induced EMF in synchronous motor also, and this EMF is called as back EMF. This EMF is called as back EMF. We have already studied in DC machine also. Even though it is a motor, when it is rotating, it is cutting the flux. Therefore, the EMF is induced in armature also. That EMF is called as back EMF, which opposes the cause producing it. Cause is V. EB is opposing V. Therefore, it is called as back EMF. In case of synchronous motor, we call it as back EMF. In case of synchronous generator, it is a main EMF. EMF induced in the. Okay, next, what exactly what I want to teach you is how to draw the phasor diagram, how to calculate EB, how to calculate angle between V and EB, that is load angle or torque angle, ये निकालना पड़ता है under different power factor condition. So this is the equation. अगर इस equation से हम phasor diagram, there is a slight difference between phasor diagram of synchronous motor and synchronous generator. Synchronous generator, EG is there, induced EMF is EG, then drop IRA, drop IAXS, then terminal voltage V. But in case of synchronous motor, we are giving input supply V, input supply AC supply V there, some drop is coming, and there is a induced EMF which is called as back EMF which occurs. So in general, अगर मैं simply अगर इसका phasor diagram I can draw this. So phasor diagram will be like this. V and इसके बीच में आपका एक फेज एंगल IA ड्रॉ होगा. ठीक है. So there is somewhere in between this EB and this is IARA and this is IAXS. ये simple phasor diagram है which we have already studied for synchronous generator. Synchronous generator में हम V से start करते हैं, ये drop प्रॉब्लम होता है और फिर जाके EG मिलता है. अब यहाँ पे हमने EB था, EB में IARA ड्रॉप हुआ, IAXS. So this is the
क्वाइट फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसको इस फेजर डायग्राम को चेंज करूंगा। देयर इज अ चेंज एंड वी एंड ईबी के बीच का एंगल डेल्टा भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं। बीएल फेरेजा की बुक में अल्फा है एंड पीएस डिमरा की बुक में डेल्टा है, तो डोंट वरी अबाउट डेल्टा एंड अल्फा। नाउ बोर्ड इज विजिबल, क्लियर? बोर्ड इज विजिबल, दिस एंगल इज डेल्टा और अल्फा। फिर टेक अल्फा आल्सो, अगर बीएल फेरेजा की बुक से पढ़ रहे हो तो अल्फा। तो ईबी एंड बी के बीच का जो एक एंगल होता है दैट इज लोड एंगल अल्फा। Phi is the phase angle between V and I. V और I के बीच में जो एंगल होता है वो फेज एंगल phi होता है। ये इन दोनों का एंगल लेके आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। We will try to draw the phasor diagram. Structure is like this same, but देखो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। I will change this phasor diagram. ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज होगा। And IARA plus IAXS, this will be IZS. IARA and IAXS will be IZS because ये Z है। इसको थोड़ा सा केयरफुली, अगर एक बार आपका फेजर डायग्राम बन गया, इसकी ज्योमेट्री बन गई, तो अब you are able to solve a numerical based on synchronous motor. Synchronous motor में जनरली क्या होता है, V गिवन रहता है, फेज एंगल phi गिवन रहता है, आपको अल्फा एंड ईबी निकालना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश at different power factor. Of course, there is a change in power factor. At different power factor, we can draw the phasor diagram of synchronous motor. I am talking about synchronous motor. I always talk about synchronous motor. Synchronous generator का phasor diagram, we have already drawn the phasor diagram of synchronous generator. I am talking about synchronous motor. तो first condition होगा आपका lagging power factor, फिर second leading power factor, then unity power factor. सबसे पहले हम लैगिंग पावर फैक्टर में हम स्टार्ट किससे करेंगे, रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे V। फिर स्टार्ट विद द रेफरेंस V से हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट विद द रेफरेंस। ठीक है, V से स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या V एंड I गिवन रहता है। 440 वोल्ट का सिंक्रोनस मोटर है या 230 वोल्ट का अगर सिंगल फेज है तो सिंक्रोनस मोटर है, तो ऑलवेज V इज गिवन एंड एट व्हाट पावर फैक्टर इट इज वर्किंग इट इज गिवन। टू थिंग्स आर गिवन, दो चीजें गिवन रहती है। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज V इज गिवन एंड सेकंड इज एट व्हाट पावर फैक्टर इट इज वर्किंग इट इज। ठीक है, ये आपका हो गया V। नेक्स्ट क्या होगा, देयर इज समथिंग IA, लैगिंग पावर फैक्टर में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये IA विद अ फेज एंगल ऑफ phi। दिस टू थिंग्स आर गिवन। लैगिंग मींस लैग। नेक्स्ट आता है वेयर इज EB। वेयर इज EB कहां होगा, तो IA इधर है। इन जनरल हमारे पास क्या है, RA प्लस JXS, इनको IA से मल्टीप्लाई करोगे तो ZS ड्रॉप होता है। जनरली एक्सेस ज्यादा होता है, RA इज वेरी स्मॉल, जो ये RA इज वैल्यू इज वेरी स्मॉल, एक्सेस इज ऑफ कोर्स मोर, ये नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। तो IA एंड ZS के बीच का एंगल जनरली 90 डिग्री बनता है क्योंकि ये हाईली इंडक्टिव है। तो एक एंगल आपका IA एक जो ये आपका बनेगा, ये करीब करीब 90 के पास बनेगा। ये जो मैंने फेजर डायग्राम में बनाया था ना IZS, ये करीब करीब इस पे बनेगा। दिस एंगल इज थीटा, IAZS। ठीक है, एंड EB को ना थोड़ा सा आपने जो मैंने लास्ट फेजर डायग्राम में बनाया था, आपको उसको उससे उल्टा बनाना है। EB मैंने ऐसा बनाया था, EB ऐसा बनाया था। EB का डायरेक्शन ये नहीं होगा बिकॉज EB इज बैक EMF इंड्यूस, बैक EMF
ईबी की पोलैरिटी एग्जैक्टली पीछे जाएगी, ठीक है। ईबी की जो पोलैरिटी है, जो फेजर डायग्राम है, ईबी पीछे जाएगा, दिस विल बी ई, और आई कैन से दिस विल बी माइनस ई। मेन फेजर डायग्राम में जो आपका ईबी बनेगा वो कहां जाएगा, पीछे जाएगा। और यू कैन सी इट्स डायरेक्शन इज अपवर्ड, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऊपर। तो V और EB के बीच का एंगल, V एंड EB के बीच का एंगल क्या होता है, IZS। बस ये माइंड में रखिए तो आपका फेजर डायग्राम बनेगा। V और EB का एंगल क्या होता है, IZS। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये क्या है, EB इज दिस, ये जैसा आ रहा ना, ये दिस इज V एंड दिस इज EB, और ये दोनों मिलके क्या बन गया आपका IZS। So this is your triangle for synchronous. V, EB and IZS. This angle is phi, total angle is theta, and V and EB का एंगल जो है ये होगा अल्फा। V and EB का एंगल होगा ये, this angle is, this is the complete of phasor diagram। ये फेजर डायग्राम आपने बना लिए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। IZS एंड IA के बीच का एंगल थीटा होगा, आप थीटा लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय आर, ठीक है। ये करीब करीब 90 के पास होगा। V एंड IA के बीच में फेज एंगल होगा, V एंड I के बीच में फेज एंगल दैट इज फाई, ठीक है। एंड V एंड EB का एंगल इज कॉल्ड एज लोड एंगल दैट इज अल्फा। ये जो EB होगा ना, ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही रहेगा, यहां भी बना सकते हैं। V एंड EB के बीच का एंगल होगा लोड एंगल अल्फा। तो बस ये आप इस ट्रायंगल को देखो और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। EB, V एंड IZS, V, EB एंड IZS, ये बस एक ट्रायंगल बनता है। सिंक्रोनस मोटर का जो फेजर डायग्राम होता है दैट इज ओनली ट्रायंगल। ऑफ कोर्स दिस इज I। अगर if you are able to draw this triangle for lagging power factor, you can directly solve the न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, टोटल एंगल थीटा है, और ये छोटा सा एंगल फाई, ठीक है, राइट। अब हमें सॉल्व फॉर EB करना है। न्यूमेरिकल में आपको पूछा जाएगा फाइंड EB। EB फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपने यहां से ड्रॉप करो 90, ठीक है। अब IZS है तो क्या होगा, IZS, ये IZS, ठीक है। टोटल मुझे पता है, तो आपको ये EB निकालना है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, तो EB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और आई कैन राइट O A B C, I can write BC square is equal to AB square plus AC square, ये हो जाना चाहिए आपके साथ, ठीक है। BC square is equal to AB square plus AC square, ठीक है। Now you can see BC square is EB, EB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB को देखो मैं लिख रहा हूं पूरा कितना है B, पूरा कितना है B, माइनस ये पार्ट करना पड़ेगा, तो ये पार्ट माइनस कितना हो जाएगा IZS, ये एंगल कितना है, टोटल एंगल थीटा है, और ये एंगल फाई है, ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा माइनस फाई। IZS cos of theta minus phi,
ये हो गया आपका AB स्क्वायर। If anybody having any doubt, तो ये they can ask. IZS cos of theta minus phi इसका माइनस कर दिया तो ये मुझे AB मिल गया। सिमिलरली AC क्या हो जाएगा? IZS sin of theta minus phi, इससे आपका डायरेक्टली EB मिल गया। इससे आपका डायरेक्टली यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ EB मिल गया आपका। IZS cos थीटा माइनस दिस कंपोनेंट इज cos एंड दिस कंपोनेंट sin, इससे आपको EB मिल गया। एंड अल्फा के लिए क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AC अपॉन AB, और AC अपॉन AB हमारे पास ऑलरेडी है। AC कितना है? IZS साइन ऑफ थीटा माइनस फाइ अपॉन V माइनस IZS कॉस ऑफ थीटा माइनस tan अल्फा। ये निकालने में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। In every numerical of synchronous motor, current voltage is given, current is given, phase angle is given. RA एक्सेस की वैल्यू देंगे, उससे आप थीटा डालोगे, थीटा निकल गया तो फिर आपका EB निकल जाएगा एंड अल्फा निकल जाएगा। EB एंड अल्फा निकल गया मींस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, दिस इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। अब मैं सेम क्वेश्चन को लीडिंग पावर फैक्टर के लिए सॉल्व करता हूँ। लीडिंग के लिए बाजू में बना रहा हूं फेजर डायग्राम फॉर लीडिंग पावर। Anybody having any doubt, they can ask. Leading power factor. Phasor diagram for leading power factor. Leading power factor के लिए आप phasor diagram बनाने की कोशिश करें। Try to draw the phasor diagram for leading power. Leading power factor के लिए भी हम V लेंगे। Anybody having any doubt, they can ask. Okay? आपको कोई भी confusion है, doubt है तो you can ask. ठीक है? Next is phasor diagram for leading power factor. Reference is V. Leading current IA, making an angle phi. Reference voltage is V. Current is A, making an angle alpha. दोन दोन कानातली घातली का? दोन दोन कानातली घातली का? टाको मला। Anybody having any confusion, they can ask. तो लीडिंग पावर फैक्टर में क्या करेंगे हम? करंट को V से लीड कराना पड़ेगा। करंट शुड लीड द वोल्टेज V बाय एंगल फाइ। फाइ से लीड कर दिया। अब व्हाट इज योर नेक्स्ट? अब IAZS, मैंने IAZS को बताया कि IAZS नियर बाय I से 90 डिग्री में होता है। I से 90 डिग्री और I से थोड़ा कम 90 डिग्री में ये या I से जाता है, थोड़ा सा नियर बाय क्लोज टू 90 डिग्री। ये देखिए एग्जैक्ट 90 नहीं होता, थोड़ा क्लोज टू 90। IAZS बस आपको I देखना है, you have to see I, और IAZS नियर बाय 90 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सिस में RA बहुत छोटा होता है, तो नियरली 90 नहीं बनाना है आपको, एक एंगल थीटा बनाना। और डायरेक्टली इसको जोड़ोगे तो आपको यू विल गेट EB। EB डायरेक्ट मिलता है लीडिंग पर।
ठीक है। This is a phasor diagram for leading power factor. ABC ABC ट्राइंगल देखना पड़ेगा आपको। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस फाई एंगल ये है, थीटा एंगल ये है। ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा प्लस फाइव। ये एंगल थीटा प्लस फाइव होगा, देखिए इस तरफ का एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा प्लस फाइव। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल 180 माइनस थीटा प्लस फाइव। अब देखो ये 180 माइनस थीटा फाइव प्लस आ गया तो आपका फाइनल हो गया BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर EB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AO प्लस OB, और ये पार्ट आपका B है तो आई कैन राइट B प्लस इतना B है, ये छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा IAZS cos IAZS इसका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ये cos कंपोनेंट है। cos ऑफ एंगल निकाला मैंने अभी 180 माइनस थीटा प्लस फाइव इसका स्क्वायर प्लस दिस IAZS साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस फाइव ये स्क्वायर किए तो आपको EB मिलेगा। Anybody having any doubt in this they can ask. किसी को कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। If you are having any doubt or confusion you can ask. क्या पूछ सकते हैं? This part is B plus IAZS cos 180 minus theta plus phi and this part is ये जो vertical component है, this vertical component जो है वो जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज IAZS साइन ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस। ये अगर दोनों कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लिए तो ये आपका ये मिल गया। और सिमिलरली अल्फा कैसे हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AC अपॉन एडजेसेंट AB। AC upon AB means this part is AC, this part is AB. AC upon AB से अल्फा। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर अंडर लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन और लीडिंग पावर फैक्टर में भी कंडीशन है। ये दोनों फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। ठीक है, देखो मशीन से न्यूमेरिकल्स आर क्वाइट डिफिकल्ट लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज कि हमें नहीं आता कुछ भी चीज। राइट नाउ देयर इज लॉट ऑफ टफ कंपटीशन को तो कंपटीशन फेस करने के लिए आपको सब आना चाहिए। थर्ड यूनिटी का नहीं किया आप लोग, यूनिटी पावर फैक्टर का कर लीजिए। और यूनिटी पावर फैक्टर कैसे होगा Draw phasor diagram for unity power factor condition. बस ट्राइंगल बनाना है आपको V एंड I लो और उसके रेफरेंस से एक ट्राइंगल बनाओ। दिस इज V, I ले लो सेम फेस में,
I will be in same phase. IAZS कहाँ जाएगा? IAZS बनाओ। IA5 तो 0 हो गया, IAZS कोई थीटा एंगल बनाएगा और ये बन जाएगा आपका EB। VIA यहां से गिरा दो आप ये कंपोनेंट 90 डिग्री और आप सीधा 90 डिग्री का है और फेस में है तो ये आपको IARA दे देगा और ये I एक्सेस दे देगा। थीटा की जरूरत ही नहीं है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट EB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस IARA का स्क्वायर, टोटल V है, टोटल V माइनस IARA का स्क्वायर अपॉन प्लस I एक्सिस। एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ this is how you are to solve the numerical based on leading power factor, lagging power factor and unity power factor। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो आपकी ये टॉपिक हो गया खत्म। पावर फैक्टर इसको तो आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व बहुत केयरफुली, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, फॉर यूनिटी पावर इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एनालिसिस पार्ट आपको वहां पे भी समझ में नहीं आएगा वीडियोस वगैरह से, तो आप केयरफुली अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई अगर डाउट है तो they can ask the question। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन, जस्ट यू कैन सी। उस स्क्रीन को आप देखो और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, 38.12 जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 100 kVA, जस्ट सी द न्यूमेरिकल। 100 kVA, सॉरी 1000 kVA, 11,000 volt 3-phase star connected synchronous motor has a armature resistance and reactance per phase 3.5 and 40 ohm respectively. Determine the induced EMF and EB and angular retardation of the rotor when fully loaded at unity power factor, 0.8 power factor lagging and 0.8 power factor leading। ये तीनों फार्मूले जो हमने पूछे हैं उसी से आपको EB एंड अल्फा कैलकुलेट करना है। इन ऑल 3 कंडीशंस यू हैव टू कैलकुलेट EB एंड अल्फा। फर्स्ट कंडीशन लिखो, देखो अभी सॉल्व हो जाएगा। जस्ट नोट डाउन व्हाट इज गिवन। 1000 kVA, 11,000 volt 3-phase स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस मोटर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करोगे आप? फर्स्ट फाइंड करंट। तो करंट कैसे निकालोगे आप? 3VPH IPH is equal to 3VPH IPH is equal to 1000 kVA। याद रखना हम लोग 3 phase on 3 phase basis we are solving the numerical, therefore 3 VPH। ये न्यूमेरिकल लिख लिया क्या सबने? नोट डाउन कर लिया?
1000 kVA। जस्ट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही है, 3 VPH IPH इज इक्वल टू 1000 kVA। स्टार कनेक्टेड है, उसका जो आपका IA मिलेगा करंट, IPH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3। VPH कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट गिवन था, तो 1000/√3। दिस गिव्स यू IPH या करंट पर फेज करंट I। तो पर फेज करंट I कितना आ रहा बताओ। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट करंट एज 52.5 एम्पियर। 52.5 एम्पियर। एंड V पर फेज कितना हो जाएगा 11,000/√3। 1100 दिया था ना, 11,000/√3, तो डेट इज कमिंग अराउंड कितना आ रहा है 635। ये दो डेटा लेके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो करंट शुड बी 52.5 एम्पियर एंड VPH, जो VPH है, जो VPH है वोल्टेज है वो 6351, क्योंकि ऑल द न्यूमेरिकल्स आर सॉल्व्ड ऑन पर फेज बेसिस। ये रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर मशीन्स, पावर सिस्टम, एनी ड्राइव्स, इन न्यूमेरिकल्स आर ऑलवेज सॉल्व्ड ऑन पर फेज बेसिस। इसलिए पर फेज बेसिस में स्टार कनेक्टेड है तो ये आ गया करंट भी 52.5। अब आपको क्या निकालना है, आई हो गया, ये हो गया, RA एंड ZS ऑलरेडी गिवन है, इट इज ऑलरेडी न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन था। RA कितना गिवन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 3.5 एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज 35। कितना दिया एक्सेस 40 ओम। ठीक है, थीटा ऑलरेडी निकाल दोगे, थीटा हर कोई निकाल सकता है, tan इनवर्स ऑफ एक्सेस बाय एक्सेस बाय R। थीटा की वैल्यू बताओ आपने कितनी निकाली है, अगर आपने किसी ने थीटा की वैल्यू निकाली है तो बताओ। अराउंड इट कम्स 85 डिग्री। ठीक है, फाई गिवन है आपको न्यूमेरिकल में, फाई इज ऑलरेडी गिवन। ये वर्क एट्स यूनिटी पावर फैक्टर, UPF यूनिटी पावर फैक्टर में आप 1 ले लो। सेकेंड केस है आपका 0.8 पावर फैक्टर लगी है, थर्ड केस इज 0.8 पावर फैक्टर नहीं। ये इतना डाटा है, आप इस डेटा से EB एंड अल्फा की वैल्यू बताओ। यू कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ EB एंड अल्फा फॉर यूनिटी। EB एंड अल्फा की वैल्यू बताओ। EB स्क्वायर इज इक्वल टू V माइनस IAR स्क्वायर प्लस IAXS स्क्वायर एंड अल्फा भी निकालो। ये आंसर आपको EB की वैल्यू पर फेज बेसिस पे आपके पास ऑलरेडी फार्मूला भी जस्ट जो मैंने पढ़ाया है वही फार्मूला बेस पे आपको EB की वैल्यू मिल जाएगी एंड अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वल टू मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ V माइनस IARA का स्क्वायर प्लस IAXS का स्क्वायर। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BL थेरेजा की बुक में इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू और tan अल्फा इज इक्वल टू IXS अपॉन V माइनस IA। इससे आपको मिल जाएगा फाइनली EB एंड अल्फा की वैल्यू। तो EB की बैक EMF की वैल्यू फॉर यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन इट्स कम्स अबाउट 6513। 651 एंड अल्फा लोड एंगल काफी छोटा होता है, लोड एंगल काफी बड़ा नहीं होता है। लोड एंगल इज कमिंग अराउंड 18 डिग्री, 18.5 डिग्री। चेक करते हैं। अब नाउ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ठीक है,
सेम क्वेश्चन आप यूनिटी पावर फैक्टर का मैंने कर दिया है। लैगिंग पावर फैक्टर का फार्मूला ये है, लीडिंग पावर फैक्टर का सॉरी लैगिंग का ये है, लीडिंग का ये। यू हैव फार्मूला ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर। सेम न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट क्यूरीज दे कैन आस्क, तो पूछ सकते हैं किसी को डाउट या क्यूरीज हो तो, अदरवाइज रेस्ट इज ओवर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको ट्रायंगल बेस्ड सिंक्रोनस मोटर के न्यूमेरिकल्स बीएल थेरेजा की बुक में बहुत सारे हैं, इट्स ऑलरेडी देयर, आप उसको देखो क्लियरली। किसी को भी एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स और क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट क्वेश्चंस दे कैन आस्क। किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्यूरीज है? आपको आगे कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट इट। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो क्यूरीज है, उसको आगे कंप्लीट करना है। और ये बीएल थेरेजा की बुक से आप इसके क्वेश्चंस करो, और टुमारो वी कैन टेक 1 क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Right? So here I am stopping here. Next class we can see कि क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट और क्यूरीज तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल फिनिश द मीटिंग। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।